Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the XRD, the X-ray diffractions. X-ray diffraction or XRD is a rapid analytical technique primarily used for the phase identification of the crystalline material and can provide information on unit cell dimensions. XRD is used for identifying the crystalline phases and estimating the particle size. Crystalline phase मालूम करने के लिए किस तरह क्यूबिक है, हेक्सागोनल है, किस फॉर्म में है, या पहले सब्सटेंस क्रिस्टलाइन है या नहीं है, अगर क्रिस्टलाइन है तो किस फॉर्म में, यूनिट क्रिस्टल कैसे हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए XRD यूज़ करते हैं. और इस तरह इसके अलावा पार्टिकल साइज़ भी इससे मालूम कर सकते हैं और इससे प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस कैन आल्सो बी एस्टिमेटेड बाय द XRD. X-ray diffraction is most widely used for identification of unknown crystalline material. यानी कैटालिसिस में जब हम किसी कैटालिस्ट को सिंथेसाइज कर लेते हैं तो अब इसको कंफर्म करना होगा कि जो चीज़ हम बनाना चाह रहे थे वो बन गया है या नहीं है. तो उसके लिए फिर नेक्स्ट स्टेप कैरेक्टराइजेशन है, यानी फर्स्ट स्टेप सिंथेसिस है, फिर कैरेक्टराइजेशन है. तो कैरेक्टराइजेशन के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनमें से एक है XRD. तो XRD से हमें ये पता चलेगा कि कंपाउंड क्रिस्टलाइन है या नहीं है. अगर क्रिस्टलाइन है तो क्रिस्टल्स किस फॉर्म में है, क्रिस्टल फेस क्या है, और होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस, यानी एक तरह के क्रिस्टल है या मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल्स है, मॉर्फोलॉजी उसकी कैसी है, किस तरह स्ट्रक्चर है. So therefore it is used for identification of unknown crystalline materials. We can say it is used for identification of unknown material. Determination of the unknown solid is critical to studies in geology, environmental science, material science, engineering and biology. यानी इस XRD को हम इन फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं ना. Applications of, अगर हम समराइज कर लें, so it is used for characterization of the crystalline materials, identification of fine-grained minerals such as clays and mixed layers clays, determination of the unit cell dimensions, and measurement for the sample impurity. It is used for the measurement of the sample impurities. हम ये देखना चाहते हैं कि जो मटेरियल हमने बनाया है वो प्योर है या नहीं है. प्रिंसिपल क्या है? XRD is based on the scattering of X-rays photon by the atoms in the periodic lattice. A beam of X-rays, when a beam of X-rays hits the catalyst sample. X-rays क्या होते हैं जिसका wavelength range 0.5 से 2 Armstrong में होते हैं. When a beam of X-rays falls on the catalyst sample, it is diffracted by the crystalline phases. According to Bragg's law, this is the Bragg's law. कैसे इसके बराबर है ये हमने डिस्कस करना है अभी. तो द फर्स्ट स्टेप क्या है? व्हेन बीम ऑफ X-rays falls on the surface of the catalyst of the sample, this X-rays is diffracted. Diffraction takes place according to Bragg's law. इसमें से n क्या है? नंबर है 1 2 3, d स्पेसिंग बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स है, और थीटा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है. अच्छा, तो क्या when beam of X-rays fall on the surface of the sample, it is diffracted. The intensity of the diffracted X-rays is plotted as a function of the diffraction angle and sample orientations. यानी पहला स्टेप क्या है कि photon falls on the surface. This photon is diffracted. फिर diffracted photon को एनालाइज करते हैं. So intensity of the diffracted photon is plotted as a function of diffraction angle. यानी एक तरफ intensity x axis पर, y axis पर, और x axis पर क्या हो जाएगा? angle of diffractions. This diffraction pattern is used. तो इससे हमारे पास एक पैटर्न आ जाएगा that is called X-ray diffraction या XRD. This diffraction pattern is used for identifying the crystalline phases in measuring the size and lattice spacing of the crystallines. यानी ये जो हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न आ जाएगा उसको फिर हम कंपेयर करते हैं विद लिटरेचर, और इससे हम क्रिस्टलाइन फेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं.
crystalline phases of unknown samples can be identified by comparing the X-ray diffraction pattern with known pattern of the metals and oxides. अब known pattern कहाँ पर है? एक organization है the International Center for Diffraction Data, ICDD database. This lists approximately 10,000 1 lakh डिफ्रैक्शन पैटर्न्स. तो उनमें से फिर इसके किसी एक के साथ कंपेयर करते हैं. लिटरेचर को देखना पड़ेगा, उसके साथ कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सैम्पल, एक एक्स-रे डिफ्रैक्शन सैम्पल है. ये इंटेंसिटी है एक तरफ और दूसरी तरफ डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन है. व्हेन लाइट falls on the surface, this light, that is the X-rays photons, X-ray light, it is diffracted. So intensity of diffracted rays is plotted as a function of angle of diffraction. तो इससे हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ आ जाता है. This is called X-ray XRD pattern. अब इस XRD पैटर्न को फिर लिटरेचर के साथ कंपेयर करते हैं और उससे हम फेज, स्ट्रक्चर और प्योरिटी या क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस उसको हम एस्टिमेट करते हैं. अब अगर पैटर्न में इस तरह के इंटेंस पीक्स आ जाते हैं तो इसका ये मतलब होगा कि सैम्पल इज़ क्रिस्टलाइन. अगर उसमें पीक्स नहीं आते, एक ब्रॉड पीक आ जाता है या नहीं आते, इस तरह पीक अगर एक डी पैटर्न में नहीं आएंगे तो फिर इसका ये मतलब होगा कि वो सब्सटेंस, वो सैम्पल, वो नॉन क्रिस्टलाइन है, वो एमॉर्फस है. तो एक एक्सआरडी का फंक्शन क्या है कि हम इससे मालूम कर सकते हैं कि आया ये जो सैम्पल हमने बनाया है, हमारे पास जो सैम्पल है पाउडर फॉर्म में है, ये क्रिस्टलाइन है या नहीं है. तो इसके लिए एक्सआरडी पैटर्न यूज़ करते हैं. अगर एक्सआरडी पैटर्न में इस तरह इंटेंस पीक आ जाते हैं तो इसका ये मतलब होगा कि सैम्पल क्रिस्टलाइन है. अगर पीक नहीं आते तो फिर इसका ये मतलब होगा कि वो नॉन क्रिस्टलाइन है. अब क्रिस्टल्स फेज किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, वो फिर स्टैंडर्ड के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं. ये एक पेपर से लिया गया है, एनवायरमेंटल प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल एनर्जी, जो कि 2020 में पब्लिश हुआ है. ये उसका लिंक है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं. अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, ये देखिए, एक ये है जिंक ऑक्साइड सैंपल, ये वाला जिंक ऑक्साइड सैंपल के लिए है, और ये ऊपर वाला ये क्या है, ये सिल्वर जिंक ZnO सैंपल के लिए है. ये तो XRD पैटर्न है जो सैंपल जो कैटलिस्ट प्रिपेयर किए गए हैं. और ये नीचे वाले ये स्टैंडर्ड है, ये ZnO का स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू कार्ड नंबर या स्पेक्ट्रम. यहाँ पर ये जो है ना ICDD डेटाबेस, इसमें इस तरह 1 लाख तक डिफ्रैक्शन पैटर्न है और एक डिफ्रैक्शन पैटर्न से अपनी एक आइडेंटिटी है. तो ये उसकी आइडेंटिटी है, ये नंबर है उसका. तो उसके साथ ये अगर हम कंपेयर कर ले तो ZnO के जो स्टैंडर्ड है उसमें एक पीक्स फॉर एग्जांपल 28 पर आ जाता है. तो इस केस में भी यहाँ पर 28 के करीब एक है. यानी इसमें जो पीक्स हैं वही हमने जो प्रिपेयर किए गए वही पीक इसमें भी आ रहे हैं. देखिए ये इसको करेस्पॉन्डिंग है इस तरह, ये यहाँ पर ये करेस्पॉन्डिंग टू दिस वन, इस तरह ये पीक्स. अब ये वाला पीक इसमें नहीं है और ये हो गए, यानी इसमें कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गए हैं. ये पीक है तो इसका मतलब ये इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ हैं. स्टैंडर्ड में पीक्स कम है, यहाँ पर कुछ पीक ज़्यादा है. तो ये जो एक्स्ट्रा पीक आ जाते हैं यानी जो हम असाइन नहीं कर सकते, वो फिर हम ये कंक्लूड कर सकते कि वो इम्प्योरिटी की वजह से हैं. इस तरह ये सिल्वर का है स्टैंडर्ड, तो ये Ag और सिल्वर के सैंपल में जो पीक्स हैं वो इसके साथ कंपेयर करते हैं. इस पेपर में यहाँ पर जो कंपेयर्स किए गए ये उस पेपर का हिस्सा है जिसमें से पीक्स एट 28.71, ये है 28 वाला, ये पीक, ये 28 वाला है. इट हैज़ बीन असाइंड टू अ प्लेन ऑफ 100 प्लेन. इसी तरह 31.85 पर, ये 31.85 वाला प्लेन है.
This has been assigned on the basis of comparison to literature और ये represent कर रहा है 002 planes। इसी तरह 34 पर जो है ये 34 वाला है, यहाँ पर ये 34 है। तो इस तरह ये सारे जो पीक्स है ये लिटरेचर के साथ हम कंपेयर करते हैं और कौन सा पीक कौन से प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम कंक्लूड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन विद द लिटरेचर। ये लिटरेचर के साथ कंपेयर किया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये रेफरेंसेस गिवन है 23 से 30 तक 7 रिसर्च पेपर्स इसके लिए सॉर्ट आउट किए गए हैं। तो इन 7 पेपर्स के बेसिस पर यानी उन पेपर्स में भी इसी तरह किया गया है ना, लिटरेचर के साथ इस तरह हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। ये रेफरेंसेस उसके एंड में दिया होंगे। तो इस तरह जो हमारे पास पैटर्न आ जाता है नॉन सैम्पल हमारे पास जो अननोन सैम्पल है, ये अब हम अननोन सैम्पल है ना, ये तो हमें कंफर्म नहीं है कि वो उसकी स्ट्रक्चर वो क्या किस चीज़ के सैम्पल है। वो बना तो लेते हैं लेकिन कंफर्म तो नहीं कि ये चीज़ वो जो हम बनाना चाहते हैं वो बन भी गया है या नहीं बना है। तो कंफर्मेशन के लिए फिर XRD पैटर्न लेते हैं और इस XRD पैटर्न को नॉन पैटर्न के साथ कंपेयर कर लेते हैं, जिस तरह इस पेपर में किया गया है। अच्छा, ब्रैग्स का क्या है? 2 persons, W.H. Braggs and W.L. Braggs, they used X-rays for the study of the internal structure of the crystals. As it is known that when light falls on an object which is of the same size as that of the wavelength of light, यानी उस जिस क्रिस्टल्स की हम बात करते हैं ना, तो उसका साइज और वेवलेंथ ऑफ द फोटोन वो कंपेरेबल होंगे। So when light falls on an object, it is diffracted. This fact is usually investigated by means of diffraction grating. Diffraction grating consists of large number of fine, equidistant and parallel lines drawn on the material. Since as the crystals is regarded as consisting of large number of parallel and equidistant atomic planes, क्योंकि crystals planes से बने होते हैं, crystal is composed of planes और वो पैरेलल्स होते हैं। So Braggs considered that diffraction effect observed by X-rays could be represented by reflection of X-rays by successive planes of the atoms in the crystals. Thus, when X-rays are incident on the crystal face, they penetrate. जब X-rays surface वो हिट करते हैं तो इनमें से ये photon penetrate to the surface. To penetrate into the crystals and scattered by atoms or ions on the crystals. For example, ये lines A prime, B prime और C prime ये planes को represent कर रहे हैं और इस तरह ये rays हैं। एक ray है L M और दूसरा ray है P Q, X-rays rays हैं। When these rays falls on the surface, some of the rays are reflected, diffracted, and some penetrate and reflected or diffracted by internal layers. Consider a set of parallel and equidistant planes A prime, B prime, C prime. ये एक plane है, दूसरा plane है, तीसरा plane है. These planes characterize the arrangement of atoms. A parallel beam of monochromatic X-rays of wavelength lambda strikes these planes at the angle of incidence. ये angle of incidence है। इस तरह इस रे के लिए है, दूसरे रे के लिए यहाँ पर ये angle of incidence होगा। तो जब ये fall करते हैं इन planes पर तो क्या होगा? Some of the rays will be reflected by the atoms from the upper layer. That is L, M, N. ये L, M और N upper layer से reflect हो गया। Some of the rays will be absorbed and some will be reflected by second layers P, Q और R. ये second layer से and so on. इस तरह कुछ यहाँ से reflect हो जाएंगे and so on. When the rays reflected from the successive layers are in phase, constructive interference will occur. Phase में phase का क्या मतलब? यानी ट्रफ पर आ रहे हैं दोनों का ट्रफ और ट्रफ सेम आ रहे हैं या क्रेस्ट दोनों के सेम आ रहे हैं तो उसको कहते हैं इन फेज।
So this will result in constructive interference will occur, and bright diffraction spots will be obtained from these planes. The condition for constructive interference is, constructive interference कब होनी है, किस फॉर्म में, उसकी कंडीशन क्या है? That the path difference between the reflected rays from the successive plane must be integral multiple of wavelength. Path difference, it must be equal to n lambda, where n is 1, 2, 3. Path difference क्या है? Path difference or PD is the difference in the distance traveled by two waves from their respective source. अब यहाँ पर देख लेना, ये एक का है, ये पाथ है ना, एक रे का, और दूसरी है इसका P से Q और फिर R तक. अब यहाँ पर देख लें, इस P से S तक तो दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाएगा ना, L और P का डिस्टेंस इस पॉइंट तक तो सेम है. इस तरह M और N से और T से R तक ये डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन इस रे में P और R में ये डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, SQ प्लस QT, एक ये और ये डिस्टेंस ज़्यादा है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये कहलाता है पाथ डिफरेंस. यानी इन दो रेस के लिए SQ प्लस QT इज़ द पाथ डिफरेंस. अब डिफ्रैक्शन के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये पाथ डिफरेंस इट मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा. यानी पाथ डिफरेंस इस केस में क्या है? SQ प्लस QT. और फ्रॉम द पाथ डिफरेंस फॉर LMN and PQR इज इक्वल टू SQ प्लस QT. यानी कैसे बराबर है? यानी इन दोनों के डिस्टेंस में फ़र्क कितना है? देखिए, L ने M तक और N तक ये डिस्टेंस कवर कर दिया है, और फिर P ने ये इसका डिस्टेंस है P से Q और R तक. अब इन दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट है. इस P Q R ये डिस्टेंस ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है? ये S से Q तक और Q से T तक ये इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड द पाथ डिफरेंस, एंड दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा. ये हमारे पास एक है पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा, और इस फिगर के मुताबिक पाथ डिफरेंस SQ प्लस QT है. सो इक्वेशन 1 and 2 को कंपेयर करते हैं, सो वी गेट SQ प्लस QT इज इक्वल टू n लैम्डा. अब इस यहाँ पर हम ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और ये M से इस PQ परपेंडिकुलर S हैं, इस तरह ये परपेंडिकुलर शो करते हैं. तो इससे हमारे पास ये ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल. इस राइट एंगल ट्राइंगल में SQ बाई MQ कंसिडरिंग MSQ ट्राइंगल, यानी ये MSQ ये ट्राइंगल, इसमें SQ बाई MQ इज इक्वल टू साइन थीटा. SQ बाई MQ is Q by MQ is equal to sin theta. rearrange करते हैं, SQ is equal to MQ sin theta. अब ये MQ, ये देखना, ये MQ ये इन दो प्लेन्स के दरमियान स्पेसिंग के बराबर है, दैट इज D. स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय D. तो इस MQ को हम अगर इस इक्वेशन में D से रिप्लेस करते हैं, देन वी गेट SQ इज इक्वल टू D sin थीटा. ये एक ट्राइंगल में. इसी तरह दूसरे ट्राइंगल में यहाँ पर देख लेते हैं, इस केस में भी ऐसा ही है. ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल में सिमिलरली कंसिडरिंग ट्राइंगल MQT, तो उसमें QT डिवाइड बाई MQ इज इक्वल टू साइन थीटा. तो QT इज इक्वल टू MQ साइन थीटा, और MQ फिर D के बराबर है, तो
ये हो जाएगा। अब ये इक्वेशन हमारे पास जो कि एस क्यू प्लस क्यू टी इज इक्वल टू एन लेमडा, इस इक्वेशन में ये एस क्यू और क्यू टी की वैल्यूज इन इक्वेशन से लगाते हैं, इक्वेशन 6 से और इक्वेशन 9 से। एस क्यू इज इक्वल टू डी साइन थीटा प्लस ये भी डी साइन थीटा है, तो डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, और ये 2 डी साइन थीटा, एंड दिस इज कॉल्ड ब्रेग्स इक्वेशंस। इसमें से n 1 2 3 के बराबर, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शंस। This equation 11 is called as Bragg's equation. This equation connects wavelength of X-rays spacing between successive lattice planes and the angle of reflections. इस तरह इसके बाद हमने डिस्कस करना है शेयर्ड इक्वेशंस, वो फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।